Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the soil chapter of standard 7. The science book's name is Future Kids Science and it's the 8th chapter soil. We have already done part 1 and part 2 of this chapter. Today we will be doing the part 3 and we will start from types of soil. We will start reading. You have learned that soil is made by weathering of rocks into small soil particles. These particles are of different types and characteristics characterize the soil type. The soil type varies from one place to another and you might even observe different soil types in your backyard. There are 3 main types of soil based on the proportion of soil particles of various sizes. Sandy soil. Sandy soil is made up of large coarse particles that do not stick together as it has large spaces between the particles filled with air. Sandy soil is well aerated. It contains soil particles with a diameter of 0.2 to 2.0 millimeter. It comprises of 60% of sand and therefore it is very porous. Sandy soil is not able to hold much water as soil particles are large with large spaces in between them, and due to its porous nature, water drains out quickly. It also gets dry very quickly because of air present in large spaces between soil particles. It contains very little humus which makes it less fertile. It is found in desert areas. Clayey soil. Clayey soil contains mainly clay. It contains soil particles with a diameter of less than 0.2 millimeter. Since the particles are smaller in size, they are tightly packed and thus have poor air circulation. This soil has an excellent water retention capacity, therefore it is heavy, sticky and hence cultivation is difficult. It is rich in nutrients and contains very little humus, therefore some plants grow well in it. It is more fertile than sandy soil. Loamy soil. It contains a mixture of sand, clay, silt and humus. It has a good water retention capacity and air circulation is sufficient. It also has sufficient minerals and humus, hence it is the best soil for cultivation of crops. It also contains silt. Silt is another type of soil which occurs as deposit in river beds. It has particles of size between those of sand and clay. A sandy soil holds very little water due to large spaces present between the soil particles and passes through this larger space available to it. A clay soil, on the other hand, can retain much water because of number of small spaces available between the soil particles. Sand and clay both are not as good as loam soil because they do not hold the right amount of sand water that is required by the plants. Therefore, loam soil is said to be the best for the growth of the plants. देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे. तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉइल हम लोग कैसे बनता है. तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनका वेदरिंग होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. कैसे? उनके ऊपर एयर का एक्शन होता है, जोर की हवाएं होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है. बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ती जाती हैं हवाएं. पानी उसके ऊपर अगर बहता रहेगा, ठीक है, तो एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर के कारण बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बह जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर वो नदियों के बहाव से और भी बहते जाते हैं और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वो सॉयल बन जाता है. ठीक है, तो जो सॉयल है, मिट्टी जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती है. ठीक है, उनका टाइप अलग अलग होता है और एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह की मिट्टी से बिल्कुल अलग ही होती है. और आपने देखा होगा कि आपके घर के पीछे तरफ जो गार्डन आपका है, छोटा बैकयार्ड है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी है. ठीक है, तो मेनली जितनी तरह की मिट्टियाँ हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके साइज़ के हिसाब से, कि उसमें जो पत्थर के टुकड़े हैं, सॉयल पार्टिकल्स है, मिट्टी के जो कण हैं वो कितने साइज़ के हैं, उस हिसाब से 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी है सैंडी सॉयल. ठीक है, तो सैंडी सॉयल क्या है कि उसमें मिट्टी के कण बहुत कोर्स होते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े मिट्टी के कण उसमें होते हैं और वो एक दूसरे से नहीं चिपक जाते हैं. हाँ, वो अलग अलग रहते हैं. भुरभुरी सी मिट्टी जो कहेंगे ना, वैसी रहती है और उनके बीच में जो है बहुत स्पेस रहता है. मिट्टी के एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस रहता है जिसमें कि एयर फिल्ड अप रहता है. आपको अगर मैं बता दूं कि जैसे कि आपने गार्डन की मिट्टी रहेगी, आप उसमें बहुत पानी डाले हैं और पानी डाल के उसके बाद आप उसको खुदाई कर दिए हैं और फिर उसको आप ड्राई होने दिए हैं, फिर खुदाई किए, फिर ड्राई होने दिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा ड्राई होकर भुरभुरा हो जाएगा. आप उसको टच करेंगे तो हाथ से ऐसे स्लिप करेगा, है ना. तो जो है वैसे ही मिट्टी होगी सैंडी सॉयल, यानी कि जिसमें बालू के टाइप का जो रहेगा, पूरा भुरभुरा हाथ से जो स्लिप होगा वो सैंडी सॉयल है. वो उसके कण, मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, पार्टिकल्स चिपकते नहीं हैं और क्योंकि उनमें बीच में हवा भरी रहती है, इसलिए सैंडी सॉयल को एरिएटेड कहते हैं, मतलब कि एयर उसमें अच्छे से प्रेजेंट है. उसके जो सॉयल पार्टिकल्स का डायमीटर है, डायमीटर आप जानते हैं ना, एक सर्कुलर चीज़ होगा
उसमें जो एक कोई हम लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के भीतर, जो कि सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा और सेंटर के थ्रू होके जाएगा, तो उसको डायामीटर कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स हैं, रेतीली मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, उनका डायामीटर का साइज़ कितना है, 0.2 से 2 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटे छोटे हैं, 0.2 से 2 मिलीमीटर। तो ये जो रेतीली मिट्टी है सैंडी सॉइल, उसमें 60% बालू है, 60% उसमें रेत है, इसीलिए वो बहुत ही पोरस है ना। पोरस है मतलब कि आप उसमें पानी डालेंगे, पानी नीचे नीचे चल जाएगा, है ना। पानी आप डालेंगे, पानी नीचे चला जाएगा, वो पानी को पकड़ के रख नहीं पाता है। ठीक है, वो पानी को पकड़ के नहीं रख पाएगा क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी थोड़े बड़े बड़े हैं और उनके बीच में बहुत स्पेस है। एक सॉइल पार्टिकल दूसरे सॉइल के पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस है जो कि पानी को पकड़ नहीं पाता है, और उसका पोरस नेचर भी है, पानी उसमें से नीचे नीचे बह जाता है, वाटर ड्रेन हो जाता है उसमें से। ठीक है, पोरस है मतलब वो पानी को पास करने के लिए अलाउ कर रहा है, पानी वहाँ से बह जाता है। और जो है सैंडी सॉइल जो है वो बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो मेनली सैंडी सॉइल क्या होगा, रेतीली मिट्टी जिसे आप कहेंगे वह होगा, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि उसके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एयर भी रहता है और उसमें ह्यूमस बहुत कम रहता है। ह्यूमस के बारे में मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया है। तो जो ह्यूमस होता है वो बहुत कम रहता है ये सैंडी सॉइल में, इसलिए सैंडी सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होता है। और सैंडी सॉइल आपको कहाँ मिलेगा, डेजर्ट एरियाज़ में। तो नॉर्मली हमारे घर के आसपास हमको सैंडी सॉइल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, कम मिलेगा सैंडी सॉइल। ठीक है, जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होगा वहाँ पे रोड के साइड में जहाँ लोग बालू ला के गिरा रहे हैं, सैंड ला के गिरा रहे हैं, वहाँ सैंडी सॉइल थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पर नॉर्मली घरों में सैंडी सॉइल नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो मिट्टी में अगर आप पानी डाल देंगे तो ऐसे से चिपकेगा ना, वो मिट्टी होगा क्लेई सॉइल। तो उनमें मेनली क्ले होता है। देखिए क्ले क्या है, वो मिट्टी जिसे हम लोग मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, जो तालाब वगैरह के आसपास होती है, पॉन्ड्स के आसपास होती है ना, वो क्ले होता है। तो वो मिट्टी जो है आप उसमें पानी डालेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएगी वो मिट्टी, है ना, हाथ में भी चिपकेगी। उसके सॉयल पार्टिकल्स का डायमीटर कम है, वो और भी छोटे छोटे हैं। पहले वाला क्या था सैंडी सॉइल, वो 0.2 से 2 मिलीमीटर था। ये जो है ये 0.2 मिलीमीटर से भी छोटे डायमीटर के हैं, बहुत छोटे छोटे हैं इनके सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स तो एक साथ सब पास पास है, टाइटली पैक होके हैं, दूर दूर नहीं है, उनके बीच में स्पेस कम है, इसलिए उसके बीच में एयर पास इतना नहीं होता है, एयर का सर्कुलेशन कम होता है क्लेई सॉइल में। ठीक है, और इस सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत है, मतलब यह पानी को अपने में पकड़ के रख सकता है काफ़ी देर तक। ठीक है, और इसीलिए जब आप उसमें पानी डालेंगे वो गीला हो जाएगा, आप उसको उठाएंगे तो काफ़ी भारी लगता है ना, हैवी होता है, स्टिकी होता है, हाथ में चिपकेगा आपके, एक दूसरे से चिपकेगा। ठीक है, तो उसमें जो है कल्टीवेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ, खेती करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब पौधे लगाएंगे पानी डालेंगे तो मिट्टी आसपास चिपक चिपक के रह जाएगी। उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत रहते हैं क्लेई सॉइल में, जितने भी तरह के मिनरल्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, और ह्यूमस बहुत पर कम होता है। इसीलिए कुछ कुछ प्लांट्स अच्छे से उसमें ग्रो कर पाते हैं क्ले सॉइल में, कुछ कुछ प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। फिर भी हम बोलेंगे सैंडी सॉइल से तो बेटर है, बालू पे तो आप कुछ नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्लेई सॉइल में फिर भी ग्रो कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप उसको रोज़ खुदाई करके फिर ड्राई करते जाएंगे तो वो थोड़ा भुरभुरा हो भी जाएगा। ठीक है, क्लेई सॉइल। अब आ जाता है थर्ड जो बेस्ट क्वालिटी सॉइल है, वो है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या है, मिक्सचर है, उसमें सैंड भी थोड़ा है, क्ले भी है, सिल्ट भी है, ह्यूमस भी है। सिल्ट क्या होता है, जब नदियाँ पहाड़ों से बह के आ रही हैं तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ लेके आती हैं नदियाँ, और जब प्लेन एरिया में नदी बहती है तो वो पत्थर के टुकड़े नदी साइड साइड में फेंक देती है, अपने बैंक्स के साइड साइड में, अपने किनारों के साइड साइड में बाहर फेंक देती हैं। और नदियाँ जब सूख जाती हैं उनके नीचे बेड में भी, नदी के नीचे भी वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ होते हैं, उनके सिल्ट के। ठीक है, तो लोमी सॉइल में थोड़ी बालू भी है, थोड़ा स्टिकी क्ले भी है, मिट्टी भी है, और सिल्ट भी है, कंकड़ थोड़ा थोड़ा, और ह्यूमस भी है। ठीक है, तो इसलिए वो काफ़ी ही फर्टाइल है। उसका गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी, वो भी पानी को पकड़ के रख सकती है, और उसमें एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है, वो बहुत चिपकता नहीं है एक दूसरे से, उसमें एयर पास हो पाता है।
उसमें काफ़ी मिनरल्स भी होते हैं, ह्यूमस भी होते हैं, तो वो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए उसमें हम फसलें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो अच्छे से वहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा। उसमें सिल्ट भी रहता है जो कि उसको फर्टाइल बनाता है। सिल्ट मैंने आपको कहा वो जैसा कि वो रिवर बेड्स के नीचे होता है, नदी जब सूख जाएगी तो नीचे नीचे रहता है, ठीक है, रिवर बेड्स के नीचे होता है। तो सिल्ट जो है उसको भी एक तरह का सॉयल ही कहते हैं, और वो रिवर बेड्स में डिपॉजिटेड रहता है, वो पत्थरों से टूट टूट के चट्टानों से आता है पहाड़ों के ऊपर से। अब आप बोलेंगे इसका पार्टिकल साइज़ क्या है, तो सैंडी सॉयल का तो काफ़ी बड़ा था, क्ले का थोड़ा छोटा था, ये उन दोनों के बीच में इसका पार्टिकल का साइज़ है लोमी सॉयल का। ये लोमी सॉयल जो है वही भुरभुरी मिट्टी है जो कि चिपकती नहीं है, ठीक है। अब है कि सैंडी सॉयल बहुत कम वाटर पकड़ पाता है, वाटर रिटेंशन है नहीं, उसमें बहुत बड़े बड़े स्पेसेस हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में, और उनसे वाटर पास हो जाता है जो ज़्यादा स्पेस है। क्लेई सॉयल का पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो वो बहुत वाटर होल्ड कर लेता है और वो स्टिकी हो जाता है क्योंकि उसमें स्पेसेस बहुत कम है पार्टिकल्स के बीच में। तो सैंड और क्ले दोनों ही लोम सॉइल या लोमी सॉइल के जैसे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जितना वाटर चाहिए प्लांट्स को उतना एग्जैक्ट उसमें नहीं मिल पाता। सैंड में बिल्कुल नहीं मिलता और क्ले कुछ ज़्यादा ही पानी रख लेता है, इसलिए लोमी सॉइल एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पानी रख पाता है जितना कि प्लांट्स को चाहिए। इसीलिए लोमी सॉइल कहते हैं कि वो बेस्ट सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सॉइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ सॉइल, it firmly fixes plants. It is a reservoir of food materials and water and minerals. It helps plants to get oxygen as air is found in the spaces between the soil particles. This air is used by plant root to respire. It is a home to many animals and microorganisms. Characteristics of soil. Moisture in soil. Soil contains moisture. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflects the sunlight and the air above soil seems to shimmer. To show that soil contains water, take a handful of soil in a beaker and cover it with a lid. Heat the content in the beaker for some time. You will observe tiny droplets of water getting deposited on the inner side of the lid. This happens because the water present in the soil is evaporated when the soil is heated. Studying the types of soil, collect samples of clay, loamy and sandy soil. Take a fistful from one of the soil samples. Remove pebbles, rocks or glass blades from it. Now knead the soil and try to make it into a ball by adding just enough water. Try to roll this ball into a cylinder on a flat surface. Again try to make a ring from this cylinder. Repeat this activity with other samples. Also find out which soil sample can be made into a cylinder or any other shape. You will find that such soil sample is clayey. This activity will help you understand why clayey soil is best suited for making toys, pots and statues. ठीक है, तो अब हम लोग फंक्शंस ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो इट फर्मली फिक्सेस प्लांट्स, यानी पौधों को वो अच्छे से पकड़ के रखता है। मिट्टी में पौधे अच्छे से लग जाते हैं, अपने आप को जमा कर रखते हैं। और वह एक रिजर्वॉयर है फूड मटेरियल एंड वाटर एंड मिनरल्स का, है ना। मिट्टी के भीतर हमको वाटर जमा रहता है, अंडरग्राउंड वाटर रहता है, मिट्टी के भीतर मिनरल्स रहते हैं, मिट्टी के भीतर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को मिल जाते हैं और जिनसे हम प्लांट से हम पाते हैं, है ना। तो एक तरह का खाना भी हमको मिट्टी से मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है और मिनरल्स भी मिल रहा है। मिट्टी मदद करती है प्लांट्स को ऑक्सीजन देने में। क्यों? क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस रहता है जहाँ से ऑक्सीजन प्लांट को पहुँच पाता है, और उसी ऑक्सीजन की मदद से प्लांट रेस्पिरेशन करती हैं, सांस ले पाती है। मिट्टी क्या है? वह घर है बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब के लिए, छोटे छोटे रैबिट, मोल्स, इन सब के लिए वह एक घर है। अर्थवर्म, ये सब के लिए वह एक घर है। अब आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी बताया गया है कि जिससे आप कैसे जानेंगे कि सॉयल कैसा है। आप 3 तरह का अलग अलग तरह का सॉयल को इकट्ठा करें, ठीक है। उन सब से एक एक मुट्ठी सॉयल आप उठा ले, एक एक फिस्ट उठा ले पूरा, ठीक है। उनमें से छोटे छोटे कंकड़, पत्थर या कांच के टुकड़े अगर हैं तो उन सबको अलग कर ले। फिर उनमें पानी डालकर उनको आटे की जैसे गूँथे, जैसे आटा आप गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे नीड करें उनको, ठीक है। और उससे एक बॉल बनाने की कोशिश करें, उसमें पानी काफ़ी डाल के पूरा एक बॉल बनाने की। फिर आप उससे एक सिलेंड्रिकल शेप का बनाने की कोशिश करें, फिर आप उसका एक रिंग बनाने का कोशिश करें। तब आप देखेंगे कि जब आप ये सब कुछ कोशिश कर रहे हैं तो सैंडी सॉइल से तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं,
आप देखेंगे कि जो क्लेई सॉइल है उसी से आप सबसे अच्छे से ये सारे स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, रिंग हो, सिलेंडर हो या बॉल हो। यानी क्लेई सॉइल सबसे अच्छा है जिससे कि आप क्ले आइटम्स बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग को जो मिट्टी का घड़ा मिलता है, अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी का घड़ा, लैम्प्स जो दिए होते हैं, खिलौने होते हैं दिवाली के समय मिलते हैं, या स्टैचू होते हैं, वो सब किस सॉइल से बनेगा? क्ले के सॉइल से सबसे अच्छे से बनेगा, क्लेई सॉइल से। अब आप कैसे जानेंगे कि सॉइल में पानी है? आप सॉइल लेंगे, एक बीकर में डालेंगे, बीकर होता है ना कांच का, एक ग्लास जैसा होता है लेबोरेटरी में, उसमें आप डालेंगे सॉइल को पानी में, ठीक है, और उसको ढक देंगे। नहीं, आप सॉइल एक मुट्ठी लेंगे, उसको बीकर में डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे, पानी नहीं डालेंगे। फिर आप उस बीकर को नीचे से गर्म करेंगे कुछ समय के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो ढक्कन के अंदरूनी जगह पे इनर सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट था वो ऊपर इवापोरेट होके और वहाँ से टकरा के कंडेंस होके वो ड्रॉपलेट के रूप में लिड के इनर साइड में डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब कि सॉइल में वाटर रहता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पहला पॉइंट हम लोग पढ़े कि मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर रहता है, सॉइल में पानी रहती है, ठीक है, पानी रहता है। एक गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सॉइल से जो है मॉइस्चर जो है, पानी वेपर बन के बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और वो जो वेपर बाहर निकलता है उसमें सनलाइट भी पड़ रहा है, तो वो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, वो वेपर का जो ड्रॉप्स, वेपर स्टीम जैसा जो निकल रहा है सॉइल से, तो उसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट उससे टकरा के वापस चला जाता है। इसलिए आपको लगेगा कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के ऊपर का जो एयर है आपको ऐसा हिलता हिलता सा फील होगा, है ना। कुछ टेक्निक्स होगा जिससे आप जान पाएंगे कि वहाँ के ऊपर का एयर शिमर हो रहा है। या दूर से आप खेतों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर हवा थोड़ी धूल धूल वाली हवा ऐसे ऐसे हिलती हिलती दिखाई देगी। नॉर्मली तो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, पर यहाँ पे बता रहा है कि एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर, क्योंकि वो सनलाइट को वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉयल, फिर हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल। Percolation rate of water in soil. If you spill water on the cemented floor, it stays there for a long time. However, if you spill water on the soil, it quickly gets absorbed in it. This process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. Take a soil sample in a hollow plastic pipe with a diameter of approximately 5 cm. Fill a measuring cylinder with 300 ml of water and start pouring it in the soil, slowly avoiding overflow. Note the time taken for the water to percolate and calculate percolation rate. Percolation rate is defined as the amount of water in milliliter that has percolated in a given time in minutes. Percolation rate milliliter per minute is the amount of water in milliliter divided by percolation time in minute. For example, for a certain soil sample, it took 30 minutes for 300 milliliter to percolate. Then rate of percolation is 300 milliliter by 30 minutes, that is equal to 10 milliliter per minute. To find the amount of water retained in different soil types, take soil of 3 types, namely sand, clay and loam. Take 3 funnels, place a filter paper in them, put equal amount of 3 samples of soil into the funnels, label them properly to know which type of soil is kept in which funnel. Place a beaker below each funnel as shown in the figure. Now pour 50 ml of water in each funnel. Leave the funnels for some time till the water filters through the soil. Note the volume of water collected in each beaker. The amount of water collected in each beaker is different, being the least in case of clay and maximum in case of sand. Maximum water is filtered through the sand because the least amount of water was absorbed by the sun, whereas the water filtered through clay is the least because it holds more water. देखिए, मॉइस्चर इन सॉइल तो हमने पढ़ा, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे, सॉइल के बारे में फीचर्स पढ़ रहे थे। तो पहला हमने पढ़ा कि मॉइस्चर रहता है सॉइल में पानी रहता है। अब दूसरा हम लोग परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल पढ़ेंगे। देखिए, सीमेंटेड फ्लोर है, पूरा कंक्रीट फ्लोर है, सीमेंट का बना हुआ है, और वहाँ पे अगर आप पानी डालेंगे तो पानी काफ़ी देर वहाँ रह जाता है, उसको सूखने में समय लगता है। अगर पानी गिर जाता है तो आपको उसको पोछा लगाना पड़ता है। पर अगर आप मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे तो कुछ ही देर में मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और दिखाई नहीं देता है ऊपर के सरफेस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि पानी धीरे धीरे मिट्टी के थ्रू पास हो जा रहा है, इन विच वाटर स्लोली पासिस थ्रू द सॉइल, इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर पास होते जा रहा है, उसको कहते हैं परकोलेशन ऑफ सॉइल,
ठीक है। अब एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। देखिए मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, कांच का एक लंबा सा ट्यूब जैसा होता है, मतलब एक आप कहेंगे कि कांच का एक जग आप कहेंगे, जो कि बहुत पतला सा लंबा सा जग रहेगा, उसमें पूरा मार्किंग बना रहता है 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर, ठीक है, लेबोरेटरी में रहता है, जग जैसा रहेगा। उसमें हम 300 मिलीलीटर पानी डाल देंगे, ठीक है, और उसको धीरे धीरे सॉयल में हम डालेंगे। कहीं पे हम सॉयल रखेंगे, उसमें धीरे धीरे डालेंगे, पानी को बाहर गिरने नहीं देंगे, ठीक है, अवॉइडिंग ओवरफ्लो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है पानी को परकोलेट होने में, पानी को सॉयल में अब्जॉर्ब होने में। तो ऐसे करके हम परकोलेशन रेट निकालते हैं। परकोलेशन रेट का यूनिट क्या है, मिलीलीटर पर मिनट। क्या है कि उसके न्यूमरेटर में वो जो हम कैलकुलेशन करेंगे उस फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर में होगा अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप डाल रहे हैं मिलीलीटर में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। उस पानी को उस उतने, मान लीजिए 100 मिलीलीटर है, तो 100 मिलीलीटर पानी को कितना टाइम लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है सॉइल को एब्जॉर्ब होने में। तो परकोलेशन रेट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम, ठीक है। तो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर में है, परकोलेशन टाइम मिनट में है, तो परकोलेशन रेट का यूनिट क्या होगा, मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे दे रहा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर दैट हैज़ परकोलेटेड इन अ गिवन टाइम इन मिनट्स। अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर दैट इज परकोलेटेड इन अ गिवन टाइम इन मिनट्स। एग्जाम्पल, कुछ हमने सॉइल सैंपल लिया, उसमें हमने 30 मिनट्स तक, 30 मिनट उसको लगा 300 ml वाटर को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो उसका परकोलेशन रेट क्या होगा, 300/30, जो कि 10 मिलीलीटर पर मिनट आएगा। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि अलग अलग सॉइल आखिर कितना पानी रख पा रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग फनल लेंगे। फनल क्या होता है, कांच की कूपी होती है लेबोरेटरी में, ठीक है, कांच का कोन जैसा शेप का होता है, उसके भीतर एक फ़िल्टर पेपर हम लोग को लैब में मिलता है। फ़िल्टर पेपर का कोन बना के हम हर एक फनल में लगा देंगे, फनल को स्टैंड से लगा के रखेंगे, ठीक है। अब हर एक में हम अलग अलग तरह का सॉइल डालेंगे, एक में सैंड, एक सैंडी सॉइल, एक में लोमी सॉइल, एक में क्लेई सॉइल, और फिर उसमें हम पानी डाल देंगे और नीचे हम एक बीकर रख देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि बीकर में पानी फिल्टर हो के जाएगा, ठीक है। मिट्टी तो ऊपर रह जाएगा और पानी फिल्टर हो के जाएगा। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो सैंडी सॉइल है उसके नीचे के बीकर में सबसे ज़्यादा पानी कलेक्ट हुआ है, लोमी सॉइल में उससे थोड़ा कम हुआ है, और क्लेई सॉइल में बिल्कुल भी कम पानी कलेक्ट हुआ है। इसका मतलब कि क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और सबसे कम एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, सैंडी सॉइल सबसे कम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा वाटर फिल्टर कहाँ से होके आएगा, सैंडी सॉइल से, और सबसे कम किससे आएगा, क्लेई सॉइल से, ठीक है। इसका मतलब कि अलग अलग सॉइल टाइप जो है अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर को पकड़ के रखता है। क्वांटिटी सब में अलग अलग रहेगा, पानी को पकड़ने का क्वांटिटी, ठीक है। कोई सॉइल ज़्यादा पानी को पकड़ के रख पाएगा, कोई सॉइल से पानी बिल्कुल पास हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, ऑल सॉइल्स हैव अ डिफरेंट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। यू कैन फाइंड दिस out by doing the following activity. Take a funnel and place a filter paper in it. Put 50 grams of dry powdered soil in the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder. Pour it drop by drop all over the soil using a dropper. Keep pouring water till it starts dripping in the measuring beaker below. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. Weight of soil 50 gram. Initial volume of water in the measuring cylinder U ml. Final volume of water in the measuring cylinder V ml. Volume of water absorbed by the soil U minus V. Weight of water absorbed by the soil U minus V gram. 1 milliliter of water has weight equal to 1 gram. Percentage of water absorbed is equal to U minus V by 50 into 100. Salinity from excessive irrigation occurs as the water is used by plants leaving behind salt which eventually begin to accumulate. देखिए, अब हम लोग जानना चाहते हैं कि सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मॉइस्चर इन सॉइल था, दूसरा था परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, अब तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। कि आखिर सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही फनल वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। फनल के भीतर फिल्टर पेपर लगा के हम उसको स्टैंड में लगाएंगे। मेजरिंग सिलेंडर में हम पानी लेंगे। मेजरिंग सिलेंडर में क्यों ले रहे हैं, ताकि हम मेजर कर सकें कि हम कितना पानी ले रहे हैं, ठीक है। और फिर फिल्टर पेपर के ऊपर सॉइल डाल के उसमें से हम
वो पानी थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा एक एक ड्रॉप करके डालते जाएंगे और नीचे बीकर में इकट्ठा होता जाएगा। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि और फिल्टर नहीं हो पा रहा है, अब पानी ऊपर ही जमकर रह जा रहा है और फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तब हम देखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर में कितना पानी रह गया है। मान लीजिए हमने 300 ml लिया और 250 ml पानी फिल्टर हो गया, पर 50 ml अभी भी मेजरिंग सिलेंडर में रह गया, यानी कि सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, 250 ml। पर उसके लिए क्या है कि हमको ये भी देखना होगा कि सॉइल हम कितने ग्राम का ले रहे हैं। मान लीजिए हमने 50 ग्राम सॉइल लिया है, ठीक है, 50 ग्राम सॉइल को हमने फिल्टर पेपर में डाला है और हमने UML पानी लिया था मेजरिंग सिलेंडर में, उसमें से कुछ पानी चला गया सॉइल में, ठीक है, सॉइल में जाके फिल्टर हो गया और जो पानी बच गया मेजरिंग सिलेंडर में वो मान लीजिए VML था। जैसे कि हमने 300 ml लिया, अब बच गया 50 ml, तो U हो गया 300 और जो V हो गया 50, ठीक है। तो हमने शुरू में U पानी लिया, UML पानी, अभी सिलेंडर में बचा हुआ है VML पानी, यानी कितना पानी सॉइल ने लिया तो U माइनस VML हो जाएगा आराम से, 300 माइनस 50 250 ml, ठीक है, यानी कि U माइनस VML पानी जो है सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है। उसको हम ग्राम में बदल देते हैं कि कितना वेट ऑफ वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो U माइनस V ग्राम। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 1 ml जो है 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, यानी कितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, U माइनस V ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया है। अब हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहेंगे कि सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, तो U माइनस V अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल, 50 ग्राम था, U माइनस B बाई 50 इंटू 100, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई वेट ऑफ सॉइल इंटू 100 करने से परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक बोल रहा है कि जब हम एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, पौधों में हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं अगर, तो क्या होगा कि पौधे तो पानी को यूज़ कर लेंगे, पर पानी में क्या आता है, सॉल्ट्स मिला रहता है, हमको पता है ना, तो मिनरल सॉल्ट्स मिला रहता है। तो पौधे तो पानी यूज़ कर लेंगे और जितना मिनरल सॉल्ट लेना है ले लेंगे, पर कुछ मिनरल सॉल्ट जो एक्स्ट्रा होगा वो वही मिट्टी के ऊपर बिखरा रह जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे वो हर रोज़ हम पानी देते जाएंगे, वो पूरा मिनरल सॉल्ट जमा होते जाएगा, तो उससे क्या होगा, सैलिनिटी हो जाएगा, मतलब हम लोग का सॉइल जो है वो नमकीन होने लगेगा मिनरल सॉल्ट्स के कारण, सैलाइन होने लगेगा धीरे धीरे और वो सॉइल खराब होने लगेगा। अब आगे है सॉइल एंड क्रॉप्स। The soil in different parts of the country is not the same everywhere. Climatic factors like wind, rainfall, temperature, light and humidity affect the soil profile and cause changes in the soil structure. Climatic factors and type of soil determine the crops that grow in any region. For example, cereals like wheat and gram grow well in clayey and loamy soil as these soils contain water. Rice grows well in clayey soil as it has a good capacity to retain water. Pulses and textiles grow well in loamy soil which drain water easily. Cotton grows well in sandy loam or loam where water is not retained in the soil and can hold plenty of air. Many times due to construction of dam, continuous high level of water table led to the salination of the arable land. Soil pollution, contamination of soil by the presence of man-made chemicals or other undesirable substances called soil pollution. Dumping of waste materials such as polythene bags and plastic pollutes the soil. It also kills the living organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. Some of its causes are as follows: excessive use of pesticides, insecticides and fertilizers, excreted products of living organisms, untreated sewage water, non-biodegradable waste like plastic, salination. Dumping of industrial waste also causes soil pollution. Chemicals present in industrial waste harm plants and cattle grazing on it. Industrial exhaust causes acid rain. It also pollutes soil, making it highly acidic, so becoming toxic for plant growth. अब मिट्टी और फसलें, सॉइल और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी और क्रॉप्स क्या होगा, जैसे कि वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ठीक है, ये सब क्रॉप्स के बारे में बोलेंगे। हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में हर जगह का सॉइल एक जैसा नहीं होता है। जैसा क्लाइमेट होगा कि वहाँ की कैसी हवा चल रही है, कितनी हवा चलती है, जैसे पहाड़ी एरिया में ज़्यादा हवा चलती है ना, बारिश कितनी हो रही है, हम लोग का जैसे डेजर्ट एरिया में बारिश कम हो रही है, ईस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कैसा है, साउदर्न इंडिया में जैसे गर्मी ज़्यादा होती है, मिडिल इंडिया में भी गर्मी ज़्यादा होती है।
लाइट कितना मिल रहा है सॉइल में, सनलाइट कितना मिल रहा है, ह्यूमिडिटी कितना है, मॉइस्चर कितना है, ये सब सॉइल को अफेक्ट करता है। सॉइल के प्रोफाइल को, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। सॉइल प्रोफाइल हमने पहले ही पढ़ा था, सॉइल का अलग अलग लेयर्स होता है। तो वो ये सारे फैक्टर जो है, विंड, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब सॉइल को अफेक्ट करता है, सॉइल के प्रोफाइल को अफेक्ट करता है। इस कारण जो है सॉइल का स्ट्रक्चर अलग अलग जगह अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, यानी कि किसी जगह का क्लाइमेटिक फैक्टर यह बताता है कि वहाँ किस तरह का सॉइल होगा और किस तरह की फसलें उगेंगी। ठीक है, जैसे कि वीट और ग्राम जो है, गेहूँ और चने जो होते हैं, वीट और ग्राम, वो क्लेई और लोमी सॉइल में अच्छे से उगते हैं। यानी कि जो सॉइल पानी को पकड़ पाएगा, रिटेन कर पाएगा, उस सॉइल में वीट और ग्राम अच्छे से उगते हैं। जबकि राइस कैसे सॉइल में, राइस क्लेई सॉइल में उगता है, क्योंकि राइस को बहुत पानी की ज़रूरत है। ठीक है, और क्लेई सॉइल बहुत पानी रिटेन करता है। और जो पल्सेस और टेक्सटाइल्स है, इन तरह तरह की दाल जो हैं, और टेक्सटाइल मतलब कि कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब कहाँ अच्छे से होता है, ये लोमी सॉइल में होता है। ठीक है, कॉटन को छोड़ के दूसरे टेक्सटाइल, जूट, हेम्प, ये सब जो है वो लोमी सॉइल में होता है, जहाँ की वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वाटर रिटेन करेगा। ठीक है, गुड कैपेसिटी उसका भी रहता है वाटर रिटर्न करने का। तो वो पल्सेस और टेक्सटाइल्स में जो भी तरह तरह की दालें हैं, और जूट, हेम्प, फ्लैक्स है, जो कि पानी जिससे अच्छे से ड्रेन नहीं हो, ऐसे सॉइल में ये उगते हैं। और जो कॉटन है, सूती कपड़े का जो कॉटन होता है, रुई जो होती है, उसको सैंडी लोम सॉइल चाहिए, यानी बालू वाला मिट्टी भी होना चाहिए और थोड़ा लोम सॉइल भी उसमें होना चाहिए, थोड़ा वाटर भी रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर वो पकड़ के रखेगा तो नहीं हो पाएगा, वाटर ड्रेन भी होना चाहिए और उसमें बहुत हवा भी होनी चाहिए, एयर स्पेसेस होना चाहिए। इसलिए सैंडी लोमी सॉइल में कॉटन अच्छे से ग्रो करता है। अब हम लोग सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे। तो जो मैन मेड केमिकल्स है, ह्यूमन बींग्स में तरह तरह के केमिकल्स बनाए हैं फैक्ट्रीज में, और बहुत सारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको सॉइल नहीं चाहता है उनमें आए, वो सारे सॉइल को क्या करते हैं, पल्यूट कर देते हैं। हाँ, सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं, मतलब कि नुकसान पहुंचा देते हैं, और इसी को सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। कंटामिनेट मैंने उसमें टॉक्सिसिटी ले आते हैं सॉइल में। ठीक है, क्या होता है कि लोग जो है पॉलीथीन बैग्स और जो प्लास्टिक बैग्स है वो जाके सॉइल में एक जगह फेंकते रहते हैं, है ना, डंप करते रहते हैं जब कचरा, तो वो धीरे धीरे वहाँ के सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है। वो जहाँ गिरेगा वहाँ का सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाता है। मिट्टी के जितने भी अर्थवर्म वगैरह है जो कि सॉइल को अच्छा बना के रखते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। तो इसके कारण वहाँ का मिट्टी भी डेड हो जाता है। इसलिए हमेशा ये डिमांड किया जाता है कि पॉलीथीन बैग्स यूज़ करना बंद करिए, प्लास्टिक यूज़ करना बंद करिए। इसी तरह फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा या केमिकल निकलेगा, जिसको फैक्ट्री वाले जाके सॉइल में फेंक देते हैं, तो डंप कर देते हैं, उनको पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। मतलब अगर वो ज़्यादा एसिडिक वेस्ट है तो उसमें ऐसे केमिकल मिलाएं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उनमें एसिडिटी कम हो जाए। इसी तरह जरा ज़्यादा एल्कलाइन वेस्ट है तो उसमें ऐसे केमिकल मिलाएं कि उसका एल्कलिनिटी कम हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी उन सबको ट्रीटमेंट करके उनको नॉन टॉक्सिक बना के सॉइल में डंप करना चाहिए। कई बार होता है कि जहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है, तो डैम्स जहाँ कंस्ट्रक्ट होते हैं वहाँ आसपास पानी काफ़ी रहता है, तो वाटर लेवल हाई रहता है। तो वाटर लेवल बहुत ऊपर तक रहेगा, पानी बहुत ऊपर तक रहेगा, तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ आसपास की जो कल्टिवेटेड लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है, जहाँ पे खेती हो सकती है, वहाँ पे सॉल्ट्स बहुत इकट्ठा होने लगते हैं और वो सैलिनेशन हो जाता है। वहाँ पे पानी, नमक ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ के सॉल्ट के ऊपर, क्योंकि वाटर लेवल हाई है, मिट्टी, पानी बहुत ऊपर ऊपर तक है और उसमें सॉल्ट्स भी है, तो वो मिट्टी को सैलिनेशन कर दे रहा है। अब कुछ कारण क्या है सॉइल पोल्यूशन के, तो हम लोग खेतों में बहुत ही पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र है, केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है, टिड्डियों वगैरह को मारने के लिए, और इसी तरह फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम, वो फर्टिलाइज़र को हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो सॉइल पोल्यूट हो जा रहा है। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ जाके
एक्सक्रीशन करते हैं, अपना स्टूल यूरिन पास अगर कर रहे हैं, तो उसके कारण भी सॉइल पोल्यूटेड होता है, ह्यूमन बींग्स हो कि एनिमल्स हो, जो भी हो। इसी तरह अनट्रीटेड सीवेज वाटर, ये जो हमारे घरों के ड्रेन्स जो पानी निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, उसका टॉक्सिसिटी नहीं निकाला जा रहा है, उसको अगर लैंड में छोड़ दिया जा रहा है तो उसके कारण भी सॉइल पोल्यूटेड होता है। ठीक है। इसी तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब कि वह खुद को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाता है, उसको कई हज़ार साल लग जाते हैं उसको अपने आप को ख़त्म करने में, मिट्टी में पड़े वो वहीं रह जाता है, जिसके कारण मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है। और एक कारण है सैलिनेशन। सैलिनेशन का आपने पढ़ा कि मिट्टी में सॉल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि कल्टिवेटेड लैंड होता है, कल्टिवेबल लैंड होता है, वो भी डैमेज हो जाता है। क्यों? ज़्यादा इरिगेशन होगा, ज़्यादा पानी हम देंगे तो धीरे धीरे सॉल्ट्स डिपॉजिट होने लगता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से जो कचरा निकल रहा है उनको भी बिना ट्रीटमेंट के डंप कर दिया जाएगा तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के केमिकल होते हैं जो कि प्लांट्स को भी डैमेज कर देते हैं, सॉइल को भी डैमेज कर देते हैं, और जो गाय बैल वहाँ पे चरने के लिए जा रहे हैं, ग्रेजिंग करने जा रहे हैं, घास खाने जा रहे हैं, वो गाय बैल को भी डैमेज होता है, वो केमिकल्स के कारण उनके भी बॉडी में डैमेज होता है। इस तरह इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज के फैक्ट्रीज में जो चूल्हा जलता रहता है उससे जो चिमनी से जो धुआं निकलता है, जिसमें कि बहुत ही तरह का कार्बन पार्टिकल्स और बहुत ही टॉक्सिक पार्टिकल्स होता है, वो सब हवा में मिल के, हवा के हाइड्रोजन सल्फ़र ये सब के साथ रिएक्ट करके, वाटर सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके एसिड में चेंज हो जाता है, और वो बारिश जब होती है तो वही एसिड रेन हमारे प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर गिरता है, जिसके कारण उसके कारण भी सॉइल बहुत एसिडिक हो जाता है। देखिए एक तरफ सॉइल सैलिनेशन हो जा रहा है, नमक ज़्यादा आ जा रहा है, किसके कारण? एक्सेसिव इरिगेशन के तरह कारण, और एक तरफ सॉइल क्या हो रहा है? एसिडिक हो जा रहा है, एसिड रेन के कारण, यानी कि दोनों तरफ से सॉइल डैमेज हो रहा है और उसके कारण प्लांट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। प्लांट्स बाइंड द सॉइल विद देयर रूट्स एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज देयर इज नो बाइंडिंग फोर्स ऑन द सॉइल एंड इट बिकम्स लूज. This soil easily flows along with wind or moving water and gets deposited on the river beds. So when it rains heavily, rivers cannot take all the rainwater quickly, leading to floods. Soil erosion can even lead to famines, excessive scarcity of food. Cutting trees, deforestation should be prevented, as erosion of soil is more severe in areas with little or no vegetation, and afforestation should be promoted. Soil conservation. Protection of soil against erosion and degradation is called soil conservation. Soil can be conserved by afforestation, terrace farming, crop rotation, building dams and embankments to prevent floods. Hydroponics is a technique with the help of water. Plants are grown in mineral nutrient solutions, not soil. देखिए सॉइल इरोजन क्या है, हम लोग जानते हैं कि टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो अगर टॉप सॉइल ही रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल हो जाए, किसके कारण? जोर की हवाएं चले उसके कारण, जोर की बारिश हो उसके कारण, तब सॉइल इरोजन कहलाता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह के कहीं और चली जाए, ऐसा कब होगा? जोर की बारिश होगी और ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह क्यों जाएगी? अगर वहाँ पे पेड़ नहीं होंगे उस मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए, यानी डिफॉरेस्टेशन जिस एरिया में हो रहा है, जहाँ पेड़ बहुत एक्सेसिव काटे जा रहे हैं, वहाँ का टॉप सॉइल का क्या हो रहा है? इरोजन हो जा रहा है, ठीक है। या फिर वहाँ जोर की बारिश अगर हो रही है तो वो बारिश के कारण भी टॉप सॉइल बह के चला जा रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण है, एक्सेसिव पेड़ के कट जाने का सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन, उसके कारण ही सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। पेड़ों की कमी जहाँ पे रहेगी, पेड़ जहाँ नहीं रहेंगे तो सॉइल को बाइंड करके, सॉइल को पकड़ के कोई रखने वाला नहीं, और सॉइल लूज़ हो जाता है और वो आसानी से उड़ती हवा या पानी के साथ, बहती पानी के साथ वह बह जाता है वो सॉइल। अब बह के वो फिर कहाँ जाएगा? वो नदियों के बेड में डिपॉजिट हो जाता है, नदी के नीचे के बॉटम एरिया में डिपॉजिट हो जाता है। और जब बहुत मिट्टी नीचे डिपॉजिट हो गई, अब जोर की बारिश आई, ठीक है, अब नदी का पानी हैवी हो गया क्योंकि नीचे मिट्टी डिपॉजिट है, तो नदी का पानी जोर से बह नहीं जा पा रहा है, बारिश का पानी इतना उसमें भर गया पर वो बारिश के पानी को अपने साथ बहा के ले नहीं जा पा रहे क्योंकि नीचे मिट्टी भरी हुई है, जिसके कारण फ्लड्स आ जाता है, पानी एक ही जगह बहुत जमा हो जाता है और बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अगर मिट्टी थोड़ी हल्की रहती, नीचे मिट्टी कम रहता तो नदी बह जाती, बारिश के पानी को लेके बह जाती आगे, पर बाढ़ आ जाता है आसपास, ठीक है, फ्लड्स आ जाता है। सॉइल इरोजन के कारण फेमाइंस भी होता है, यानी जहाँ पे सॉइल
इरोजन हो गया। फर्टाइल सॉइल अगर चला गया तो वहाँ पे पौधे उगेंगे ही नहीं, पौधे नहीं उगेंगे तो खाने नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो अकाल आ जाएगा, फेमाइन आ जाएगा, लोगों को खाने की कमी हो जाएगी। इसीलिए पेड़ों को काटने को रोकना चाहिए। और क्यों? क्योंकि वह सब एरिया जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम लगे हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है वो सब एरिया में। ठीक है, तो वो सब जगह पे ज़्यादा सीवियर सॉइल इरोजन होता है। इसीलिए जहाँ वेजिटेशन कम है, जहाँ पेड़ पौधे कम है, वहाँ और पेड़ लगाने चाहिए। तो सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है? सॉइल को प्रोटेक्ट करना इरोजन के खिलाफ, इरोजन से सॉइल को बचाना और सॉइल को डिग्रेडेशन नहीं होने देना, सॉइल की क्वालिटी को लो नहीं होने देना, पोल्यूशन से बचाने को कहेंगे सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन एंड डिग्रेडेशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। कैसे बचा सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगा के। दूसरा टेरेस फार्मिंग, ये आपने पढ़ा है पहले भी कि पहाड़ों में ऐसे सीढ़ी सीढ़ी जैसा गोल 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 कट करते हैं पहाड़ों को, और उसमें साइड में ऐसे ऐसे ऊँचे ऊँचे बाउंड्री जैसे बनाते हैं ताकि पानी बह के अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को नीचे नहीं ले जाए, और तब उसमें खेती करते हैं। तो उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ऐसे बाउंड्री बना के वो लोग खेती करते हैं वहाँ पे पहाड़ों में। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग एक तरीका है सॉइल कंजर्वेशन करने का। एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, वृक्षारोपण। क्रॉप रोटेशन, कुछ महीने आपने एक तरह की फसल उगाई, फिर कुछ महीने आप लेग्यूमिनस प्लांट उगाएंगे, ऐसे प्लांट जो कि पौधों मिट्टी को नाइट्रोजन देंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मिक्स कर करके अलग अलग तरह की फसलें उगाना ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। और डैम्स एंड एम्बैकमेंट्स बनाना, आसपास के एरिया में बहुत सारे डैम बनेंगे या फिर एम्बैकमेंट्स, मतलब कि साइड में ऊंची ऊंची बाउंड्री बनेगी ताकि जो है जोर की फ्लड नहीं आए। पानी जो है डैम्स में क्या होता है, पानी जमा किया रहता है, और अगर ज़्यादा बारिश की पानी जमा हो गई तो क्या होता है, डैम का नल को खोल दिया जाता है ना, डैम्स के वो स्लाइड करने वालों को खोल दिया जाता है और वहाँ से एक्सेस पानी बह जाता है। ठीक है, तो यानी वो आसपास की मिट्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और एम्बैकमेंट्स बनाते हैं, मतलब कि बाउंड्रीज बनाते हैं ताकि पानी बहुत ज़ोर से नहीं बहे इधर उधर और मिट्टी के टॉप सॉइल को इरोड नहीं करे। ठीक है, और एक टेक्निक क्या है आजकल, हाइड्रोफोनिक्स है। उसमें क्या करते हैं, पानी में ही पौधे उगा रहे हैं, वहाँ पे सॉइल नहीं होता है, सीधे पानी में पौधे उगा रहे हैं, और उस पानी में क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स वो लोग डाल देते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। सॉइल की ज़रूरत नहीं, सीधे पानी में ही पौधे उग रहे हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो आपका ये सॉइल चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। आपका नया चैप्टर होगा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 9 में हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।